Students, I am Dr. Lalita Yadav from Hari Science and Maths Academy. As we are discussing in bio the first chapter, that is basis of classification. In the last lecture I discussed the topic that is five kingdom classification. The basis of five kingdom classification is cell organization, body organization and mode of nutrition, in which I already discussed the topic mode of nutrition, that is autotroph or heterotroph, and the body organization, that is organism is unicellular or multicellular. The only basis of classification left out is cellular organization. Today we are going to discuss the topic that is cellular organization, on which the organisms are classified in five kingdom classification. Cell. Cellular organization means, first we talk about the cell. SELL, cell. Cell is the basic unit of all the living organisms. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल जो होती है वो क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है. अब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के सेल के अपने सेल जो है, मैंने यहाँ पर बोर्ड पर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए हैं. ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म का जो सेल है वो क्या होता है, मतलब हर एक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर जो होता है वो अवेलेबल होता है. तो सेल के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनलीज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द मेन ऑर्गेनली इज न्यूक्लियस, एंड जो न्यूक्लियस की प्रेजेंस है या एब्सेंस है उसके बेसिस पर सेल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस, उसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन में कि हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है, उस बेसिस पे हर एक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया दो पार्ट्स के अंदर. आइदर दे आर प्रोकैरियोट्स और दे आर यूकैरियोट्स. Prokaryotes is the term that is made up of two words. One is pro and the second one is the karyotes. Similarly, eukaryotes is also made up of two terms. One is EUU and second one is karyotes. Pro means here that is before. Pro means before. Karyotes means nucleus. Karyotes means nucleus, right? And EUU means true and karyotes means nucleus, right? The structure of prokaryotes cell is shown on the left hand side and the structure of eukaryote cell is shown on the right hand side. First we discuss about the prokaryote cell. The structure shows that this is flagellum. Flagellum basically helps in the movement of the cell. Flagellum basically helps in the movement of the cell. This black color line, inside वाली black color की जो line है, that is known as cell wall. This is the cell wall. This जो hair like structure जो मैंने ऊपर शो किया है, that is known as pilus. Pilus, Pilus, pilus. This round type structure is known as ribosomes. They are ribosomes. The inside structure of this जो ये है, that is known as nucleoid. Nucleoid, that is basically the DNA. And this green color line that is shown, this is cell membrane. This is cell membrane, right? And this is ये जो बीच का स्पेस है, that is known as capsules. That is known as capsules. These are the all parts of the prokaryote cells.
In the prokaryote cell means there is no nucleus is present. Instead of nucleus, there is the term nucleoid which contains the DNA. DNA, full form of DNA is deoxy, full form of DNA is the deoxyribonucleic, this is not D, this is C, nucleic acid. DNA decides the genetic characters of the living organisms, कि living organisms के उस particular के क्या हमारे पास genetic characters होंगे, that is decided by the DNA. It basically carries the genes. ठीक है, that we discuss in detail later on in the higher classes. This is all about the prokaryote cell. In prokaryote cell, it doesn't contain any true nucleus. But in case of eukaryote cells, they contains the true nucleus of the cell. All of them is having the different functions. The functions of the each and every part is not in your syllabus till now. So I am not discussing over here. Now, the next is the eukaryote cell. It contains the true nucleus. True nucleus, this red color round like structure is basically the nucleus of the eukaryote cell. This is the nucleus of the eukaryote cell, which contains the DNA or the genes of the living organisms. This is the nucleus. And this round like structure in this, it is the nucleolus, right? This is black color line is cell wall, this black color line is cell wall, or you can say it is cell membrane, right? This is known as round like structure is ribosomes. They are ribosomes. This is ER. ER means endoplasmic reticulum. ER is endoplasmic रेटिकुलम. ये जो है ये दो तरीके के होते हैं. वन इज रफ ER and another one is smooth ER. In case of rough ER, as I am showing over here, यहाँ पर दिखाया है कि ER का जो स्ट्रक्चर है ये पूरा ER है. ठीक है, कुछ पार्ट जो है वो हमने सिंपल दिखाया है जिसके ऊपर बाहर कोई डॉटेड वगैरह नहीं लगा, तो दैट मीन्स दैट इज द स्मूथ ER. और जिसके बाहर मैंने लाइन के बाहर जो है ER के बाहर मैंने यहाँ डॉट्स लगाए हैं, इट मीन्स दैट इज रफ ER. ये रफ ER है. ER का फंक्शन सेम है वेदर इट इज स्मूथ ER और रफ ER. एंड दिस is known as mitochondria. Right? Now this is Golgi apparatus. And this near Golgi apparatus red color dots are shown. These are known as Golgi vessels.
vesicles, right? Now, if we come out on the downside, this structure is known as centrioles, and these structures are known as microtubulus. And this structure is known as lysosomes. Hope I cover all the topic. And this cell is filled with a fluid that is known as cytoplasm. Cytoplasm. And द स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ ये शो हो रहा है, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जहां पर अब मैंने बाहर की सेल की मेम्ब्रेन जो है वो क्या बनाई है, एक स्मूथ बनाई है, यहाँ पर एक ओपनिंग टाइप की बना करके और ये यहाँ पर इंक्रीज किया है. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पिनोसाइटोलिक वेसिकल्स. अब हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती, और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो जनरली किसके अंदर होते हैं, बैक्टीरिया या हम कह सकते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल प्रेजेंट होता है दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल. और जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर द यूकैरियोटिक सेल. उनको क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है. अब प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जो हमारे कहाँ पर हैं, दे आर थर्मोफाइल. कुछ सेल्स ऐसे हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर को भी क्या कर सकते हैं, स्टैंड बाय कर सकते हैं, मतलब झेल सकते हैं. दे आर नोन एज थर्मोफाइल्स. ये कौन से थर्मोफाइल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकते हैं. वो हाई टेम्परेचर कितना हो सकता है, 40 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस. जनरली दे आर फाउंड अंडर द अर्थ. इस तरीके के जो सेल्स होते हैं वो हमारे फाउंड किए जाते हैं अर्थ के अंदर जहां पर टेम्परेचर बहुत हाई है. और वो बाहर कब आते हैं, जब हॉट स्प्रिंग जो है वो हमारा बाहर आता है अर्थ में से, तो उस वाटर में हमारे पास ये वाले सेल्स जो हैं ये पाए जाते हैं थर्मोफाइल. ये इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पाए जाते हैं. नाउ ये माना जाता है कि जो फर्स्ट फॉर्म है अर्थ की वो क्या थी, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थे अर्थ पर जो एग्जिस्ट करते थे दे आर प्रोकैरियोटिक. वो क्या थे, प्रोकैरियोटिक थे. अब उसमें क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक में एडवांसमेंट हुई और अलग अलग, जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हर एक ऑर्गन्स का अपना अपना फंक्शन है. ठीक है, अगर हमारा खाना जाएगा तो वो किसमें जाएगा, स्टमक में जाएगा. स्टमक से वो डाइजेस्ट होकर के फिर हमारी बॉडी पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा. ब्रेन का काम क्या है, सोचना है. सिमिलरली सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनलीज जो यहाँ पर बताई हैं, हर एक ऑर्गेनलीज का अपना अपना फंक्शन है. जैसे कि न्यूक्लियस जो है वो क्या कहा जाता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. कि सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का जो काम है दैट इज ऑफ न्यूक्लियस. वो किसका काम है, न्यूक्लियस का काम है. अब गोल्गी एपरेटस जो है वो क्या करता है, प्रोटीन्स वगैरह को रिसीव करता है. कहाँ से रिसीव करेगा, जो ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे प्रोटीन्स को और लिपिड्स वगैरह को क्या करेगा, रिसीव करेगा और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा. उसको क्या करेगा, रिफाइन करेगा, मॉडिफाई करेगा और मॉडिफाई करने के बाद उसको सेल के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा. ठीक है, अब कोई फंक्शन जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होती है. वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा,
जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है दैट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। उसको क्या कहा जाता है? सेल का पावर हाउस कहा जाता है। वो सेल की एक्टिविटी जो है उसको क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब पाइनोसाइटोलिक वेसिकल्स ये जो है ये क्या करता है? अब सेल के अंदर जो है वो किस चीज को आना है, बाहर से क्या एक्सटर्नल फ्लूइड उसके अंदर आएगा या क्या नहीं आएगा, दैट इज कंट्रोल्ड बाय पाइनोसाइटोलिक वेसिकल्स। तो इस तरीके से हर एक पार्ट का जो है वो अपना डिफरेंट फंक्शन है that we will discuss later on in the higher classes, but this is all about the prokaryotic cell and eukaryotic cell। अगर हम इसका एक डिफरेंस की टेबल बनाते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की, तो वो कुछ पैरामीटर्स डिपेंड होंगे उसके ऊपर कि हमारे पास किन किन पैरामीटर्स के बेसिस पर हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट लेट मी डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट सेल्स एंड यूकैरियोट सेल्स। यहां पर लिखते हैं पैरामीटर जिसके बेसिस पर डिफरेंस आएगा, पैरामीटर। एंड द फर्स्ट इज प्रोकैरियोट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट पैरामीटर इज साइज। अब सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं है, सिंपल। तो ये एक सिंगल सेल है तो दैट इज स्मॉलर इन साइज। तो इसके अंदर क्या होगा? अगर ऑर्गेनेलीज कम होंगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका साइज क्या होगा? कम होगा। इसमें ज्यादा ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट है तो यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो क्या होता है? लार्जर होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। सेकेंड इज सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी। Cellular complexity is depending upon the number of organelles present। प्रोकैरियोटिक सेल में अभी हमने पढ़ा कि डिफरेंट ऑर्गेनल, कुछ ही ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो क्या होती है? मोस्टली यूनिसेल्यूलर। ये क्या होते हैं? ज्यादातर यूनिसेल्यूलर होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह में जो पाए जाते हैं दे आर प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं दे आर मल्टी सेल्यूलर। ये क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया एंड कैट्स वगैरह, लायंस वगैरह, दे आर फाउंड इन देम, उसके अंदर पाए जाते हैं। थर्ड वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता? प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता। तो इट मींस न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द, इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस the nucleoid contains the DNA in prokaryotic cell and it is present in eukaryotic cell। एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा, एक से ज्यादा न्यूक्लियस नहीं होगा। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होता है। ये एब्सेंट है और ये यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस भी क्या है? यहाँ इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, तो वो पैरामीटर जो है वो हमारा डिफरेंशिएट नहीं कर सकता प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को। ठीक है। तो गोल्गी एपरेटस जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल में जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का जो साइज है, अब राइबोसोम्स जो है वो इसमें प्रेजेंट है, उसमें भी प्रेजेंट है, बट इसमें जो है वो क्या है? स्मॉलर है, छोटे हैं, बहुत छोटे। और इसके अंदर जो है दे आर लार्जर। वो क्या होते हैं? लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है। ये डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब इससे ये तो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम। ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेसिस पर किया गया था उसके बारे में हमने 3 पैरामीटर्स पढ़े थे, डिस्कस किए थे। वन इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो आज डिस्कस किया है। सेकेंड वन इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। एंड थर्ड वन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है वो भी हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट जो उसके अंदर क्लासिफिकेशन थी दैट इज मोनेरा।
वो क्या थी? मोनरा। अब एक टेबल फॉर्म में ही बता देती हूं मैं क्या चीज, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ characteristics feature of 5 kingdoms, features of 5 kingdoms। ठीक है, सबसे पहला क्या था? मोनेरा। सेकेंड वन इज प्रोटेस्टा। थर्ड वन इज फंगी। थर्ड वन इज फंगी। फोर्थ वन इज प्लांटे एंड फिफ्थ वन इज एनीमेलिया। इसी के बेसिस पे करते हैं। अब इसमें हमने मोनरा जो है दैट इज ओनली द प्रोकैरियोट। वो क्या है? प्रोकैरियोट। ठीक है, रेस्ट ऑल अदर्स आर यूकैरियोट। ये सारे क्या हैं? यूकैरियोट। फंगी भी यूकैरियोट है, प्लांटे भी यूकैरियोट है, and Animalia is also eukaryote, right? Second is Monera is unicellular। अभी बताया कि मोस्टली जो हैं वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोट यूनिसेल्यूलर होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर प्रोकैरियोट, वो प्रोकैरियोट होंगे। तो प्रोटिस्टा इज ऑल्सो यूनिसेल्यूलर, fungi may be unicellular and may be multicellular, while plant is multicellular and Animalia is also multicellular. Now, on the basis of their mode of nutrition, they are autotrophic, and heterotrophic both. They fulfill their nutrition requirement with the help of the both autotrophic and heterotrophic. Similarly, Protista also fill their nutrition requirement with the help of the autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. And heterotrophic mode of nutrition, while the fungi is heterotrophic, Plantae is autotrophic, and Animalia is heterotrophic. Example is, this is the first point, this is the second point, this is the third point, and the fourth is, example is bacteria, इसका एग्जाम्पल है अमीबा। फंगी का एग्जाम्पल है ईस्ट। प्लांटे का एग्जाम्पल है ऑल ग्रीन प्लांट्स। एनिमेलिया का एग्जाम्पल है एनिमल्स।
including humans. This is the प्रोटिस्टा में अमीबा भी आता है, पैरामीशियम भी आता है. पैरामीशियम ऑल्सो. इसमें ईस्ट भी आता है एग्जाम्पल में, मशरूम भी आता है, ब्रेड मोल्ड्स, ब्रेड के ऊपर जो फंगी आ जाती है ग्रीन ग्रीन कलर की आफ्टर सम टाइम, दैट इज नोन एज ब्रेड मोल्ड्स, वो भी आता है. ठीक है. फंगी को फिर से दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है. वन इज fungi is divided into two parts. One is saprophytes, and another one is parasites. Saprophytes are those which feed on the dead and decaying animals या decaying matters. ठीक है. सेप्रोफाइट्स वो हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर्स के ऊपर फीड करते हैं या उनको खाते हैं. पैरासाइट्स वो हैं जो ऑब्टेन करते हैं देयर फूड फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसके ऊपर वो ग्रो कर रहे हैं उन्हीं से अपना फूड जो है वो क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं. दे आर नोन एज पैरासाइट्स. ये है डिफरेंस मेनली हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का. कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो हैं ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं. दिस इज ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी इज ओवर. Please like, share and subscribe the channel for the video notification, and thank you.